माज़रत, इंटरनेट की खराबी ने वीडियो में थोड़ा रोला डाल दिया है। उम्मीद है आप ताउन करेंगे। Assalamu alaikum, Somal. Thank you so much for joining the session. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? Allah ka shukr. Somal, for the audience, can you just introduce yourself ताकि लोगों को दोबारा से पता चल जाए? I'm pretty much sure सबको पता ही होगा वैसे, लेकिन फिर भी. Absolutely. Hi everyone, I'm Sumal. I'm the founder of Ruby Design, which is a design startup. I provide content design services to startups and CPG brands through subscription services. Oh, that's perfect, perfect. So you know the agenda कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हम डिस्कस करने बैठे हैं कि ग्रोथ बेसिकली किस तरीके से हो सकती है. So if I say, like, just for the conversation startup, if I say, what's growth for you? Like, what do you think growth is all about? For me, I think growth is a part of life. It's a constant part of life. It's becoming constantly becoming the better version of yourself. It is combining everything that you've learned throughout your life and, you know, becoming that better version of yourself through those learnings. That is growth for me. Perfect, perfect. अब इस ग्रोथ से जो सबसे 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 मेन चीज लिंक्ड अप हुई है प्रोफेशनली, आई थिंक दैट इज लिंक्डइन. And to be very honest, LinkedIn is a very professional platform that what I believe कि बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में LinkedIn का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है if you're using the platform very right. क्योंकि you can connect with different people, you can do the personal branding, you can endorse yourself and vice versa. Just for an idea, अगर मैं ये स्टार्ट करूं, क्योंकि हमारे यहाँ ये मिथ तो नहीं कहूँगा, बहुत लोग ये सुनते हैं कि आपकी लिंक्डइन ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, आपकी लिंक्डइन जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए. तो व्हाट डू यू थिंक लिंक्डइन का ग्रोथ से क्या लेना देना है? ठीक है, हाउ इट कैन हेल्प द पीपल एंड हाउ इट हेल्प यू इन योर प्रोफेशनल कैरियर? I think LinkedIn is a new social in your professional career. LinkedIn जो है वो प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे आप अपना काम विजुअली और स्टोरी टेलिंग के थ्रू लोगों को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ योर इंडस्ट्री, रिगार्डलेस ऑफ योर प्रोफेशन, चाहे आप फाइनेंस से हैं, चाहे आप HR से हैं, डिजाइन से हैं, डेक से हैं, डेटा से हैं, कहीं से भी हैं, आप वो अपना काम प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों को. एंड the more you talk about your work, the more you tell people about your work, they will get to know who you are, or they'll get to know what your journey has been. They will get to know what kind of work you can do, which ultimately opens up a lot of opportunities for you. Like मुझे मैंने मेरे मेरा ये रिग्रेट है कि मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट करना, उस पर कंटेंट बनाना बहुत पहले से नहीं शुरू किया. मैंने बहुत देर से शुरू किया. आई रिमेम्बर कि 2-3 साल पहले जो भी लोग लिंक्डइन पे पोस्ट करते थे, me and my colleagues would make fun of them, like everyone else. We would make fun of them. But 2 साल बाद, like this year only, मैंने start किया and I realized कि मैं इतना constantly नहीं भी post करती तो भी मुझे सारे के सारी opportunities जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, सब मुझे LinkedIn के थ्रू मिलता है, because they see my work, they know my work, they know my story. So it is the place where people find you professionally, and that is where you get more and more work. So it is extremely, extremely important to, have a presence on LinkedIn. It helps you build your personal brand, build your personal presence in the professional industry. It's very important. सुमन, हमारा सेशन ज़्यादातर जो है रिलेटेड टू डिज़ाइन हो, क्योंकि हम दोनों जो है क्रिएटिव फील्ड से ही बिलोंग करते हैं. आई थिंक दे आर अ लॉट ऑफ ब्लॉकर्स जो कि क्रिएटिव प्रोफेशनल्स को होते हैं रिलेटेड टू लिंक्डइन एंड ऑल. सो व्हाट डू यू थिंक कि लाइक मुझे लगता है कि एक साल में काफ़ी सारे क्रिएटिव प्रोफेशनल अब लिंक्डइन पे आए हैं, वो अपना काम इंट्रोड्यूस करते हैं, इंगेजमेंट करते हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं. सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम मुझे लगता है, जो कि शायद सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, पीपल आर नॉट अवेयर हाउ टू डू देयर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. सो व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपने पर्सनल कैरियर में भी देखा है कि लोगों को अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने में बहुत मसला होता है. इफ दे आर नॉट यूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म, और एल्स दे आर नॉट अपडेटिंग इट. हाउ, व्हाट डू यू थिंक सोमल, के पोर्टफोलियो कितना इंपॉर्टेंट है हमारी फील्ड में,
दूसरा उसको अप टू डेटेड रखना, उसको एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म पे रखना। फॉर एग्जांपल अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की बात किया है तो अगर विजुअल है तो वो बेहान्स पर हो, अगर वो यूआई यूएक्स है तो वो ड्रिबल पर हो, वाइस वर्सा। व्हाट्स योर थॉट ऑन इट? I think everyone struggles to update their portfolio because they all get, हम दूसरों के काम पे तो उसके लिए टाइम निकालते हैं, उसके लिए डिजाइन करते हैं, बट अपने लिए कभी भी डिजाइन नहीं करते उस तरह से। एंड आई थिंक बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो एंड मेंटेनिंग अ पोर्टफोलियो वो अपने लिए डिजाइन करना होता है, अपने लिए काम करना होता है। तो उसके हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं, इन माय ओपिनियन, जो कि नहीं करना चाहिए। अपने आप अपने लिए आई थिंक वन शुड टेक आउट टाइम, मे बी सिर्फ आधा घंटा इन अ मंथ, 1 घंटा इन अ मंथ, और whatever जो भी कन्वीनियंट हो, इतना तो हम कर सकते हैं अपने लिए निकाल के। एंड ऑब्वियसली क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली नया काम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट हमें लोगों को भी तो दिखाना है कि हम नया काम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्या काम है। एंड ओपिनियन जितना है किसी न किसी एस्पेक्ट में, तो इट्स इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट कि हम अपने जो हमारा काम बेहतर होता जा रहा है वो भी तो प्रेजेंट करें ना। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम जो काम हमने किया है वही हमें डिफाइन करता है। we're constantly growing and हमारा पोर्टफोलियो वो प्रेजेंट करना चाहिए कि we are growing. And I think the best way, yes, visually you use these platforms, but incorporating LinkedIn into that, I've seen people जो अपना काम जब अपडेट करते हैं, they tell the story behind the design on LinkedIn, they make a post about it, they show कि अच्छा उनकी thought process क्या था, and they be very very authentic, very very real कि अच्छा like I struggled through this, मेरी ये जर्नी रही थी through पूरे डिजाइन में, मेरा ये थॉट प्रोसेस था। तो वो लोगों को नजर आता है कि अच्छा ये सब विजुअली डिजाइन नहीं कर सकता, ये एक्चुअली उसके पीछे स्टोरी भी बता सकता है। एंड आई थिंक स्टोरी टेलिंग इज अ ह्यूज रोल इन कन्वेइंग योर मैसेज। तो वो एक आई थिंक होलिस्टिक डिजाइनर बन जाता है वो इंसान जो स्टोरी टेलिंग भी कर सकता है और विजुअली डिजाइन भी कर सकता है। तो आई थिंक दैट्स हाउ लिंक्डइन रियली रियली प्लेज अ huge role. वहाँ से आपको फिर obviously the more people see it, the more opportunities you will get. वो किसी अगर आपने fintech related कुछ design किया है, somebody somewhere might see it, क्योंकि LinkedIn is not just your geographical area से related, वो internationally भी जा सकता है। You might get international opportunities once you start posting more and more. So I think that's what I think कि वो अपने लिए टाइम निकालना होता है when you update your portfolio, and वो आपकी importance जाहिर करता है आपकी नजर में। You just mentioned, Sumal, that you regret कि यार you should start posting on LinkedIn way before that you are doing like आप अगर 1 साल से करें तो आपको लगता था कि आप 2-3 साल से करें। सो व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी प्लान? क्योंकि अब हम एक ही फील्ड से हैं, तो हर फील्ड की ना एक अलग स्ट्रैटेजी प्लान होती है। हर स्ट्रैटेजी ना क्या है, ये एक माइंडसेट होता है कि यार मैं अपने काम का ये वाला पार्ट जो है एंडोर्स करूंगा या इस तरीके से एंडोर्स करूंगा, जैसा भी आपने बताया कि यार की स्टोरी होनी चाहिए। क्योंकि व्हाट आई बिलीव पर्सनली कि फाइनल प्रोडक्ट देखने से ज़्यादा लोगों को ये इंटरेस्ट होता है कि उसका ओवरऑल प्रोसेस कैसा है। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट कि अगर हम एक डिज़ाइन डालते हैं तो शायद उसको देख के लोग ओके ठीक है वाह यार ये कह लें, लेकिन उसकी जो पूरी रिसर्च है, उसका जो टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है वो तो हम डाल ही नहीं रहे। What do you think? What's the strategy that you are doing right now? Are you posting regularly, or you posting your main thing? You are focusing on towards the कि यार उसकी behind the story पूरी बताऊं ताकि लोगों को पता चले। What's your like अगर मैं पूछूंगा सुमल का क्या mindset होता है to endorse their portfolio not only on LinkedIn या कहीं पे भी, तो what's your mindset? What the key pointers? Maybe these key pointers can be helpful to other people जो कि डिजाइन से रिलेटेड है, UI UX से रिलेटेड है, they can also do that and get more engagement towards it. To be honest, I don't post as regularly as I would like, but मैं जब भी कुछ पोस्ट करती हूँ तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा के उसकी I really want the post, the content to be very authentic. I want it to be like a story so that people don't get bored. It's engaging.
So when you want to tell a story, you have to be real. You have to show behind the scenes, आपका process, आपके thought process, आपका, how you got to the decision about the design, you know, आपकी inspiration. Because I feel like when I see other people's work, I connect more with people who can show कि वो कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था इस डिजाइन के बारे में सोचना, और वो कैसे उस फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचे. वरना इवन आई गेट, बिकॉज हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम होता है, हम कैसे किसी की अटेंशन ग्रैब करें अगर हम उसको इमोशनली नहीं कनेक्ट कर पा रहे. एंड विद एनी काइंड ऑफ कंटेंट, आपको अपनी ऑडियंस का इमोशन ग्रैब करना बहुत जरूरी होता है. हम टिकटॉक पे क्यों स्क्रॉल करते जाते हैं? क्योंकि हर जो टिकटॉक हमारी अटेंशन ग्रैब करती है ना, उसका जो फर्स्ट 10 सेकेंड्स होते हैं ना, उसमें आप क्यों हुक होते हो? क्यों? क्योंकि वो आपके किसी ना किसी इमोशन से प्ले कर रहा होता है. And storytelling really does that, you know. तो आई फील लाइक कि मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा ये होती है कि मैं कोई भी काम दिखाऊं, बताऊं, उसके बारे में बात करूं. आई हैव टू टेल अ स्टोरी. सो आई रियली गो डीप डाइव. अच्छा, मैंने ये क्यों किया था, इसके बारे में मैंने क्यों सोचा था, मैंने ये डिजाइन स्टाइल क्यों चूज किया था. सो आई रियली incorporate that into my strategy. That is the main thing in my strategy. बाकी सब जब वो खुद ब खुद हो रहा होता है, As you mentioned that, Sumal, that you're doing a lot of work for on a subscription base for different companies related to उसमें I have recently seen your work जो आपने अभी I think Notion की branding करी, या दूसरी जो भी आप काम करते हैं. So you do a lot of branding, ठीक है. And I see it as a personally, क्योंकि जब आप branding किस तौर के लिए करती है, तो I think ये सवाल बहुत important हो जाएगा कि what do you think personal branding is all about. क्योंकि लोगों का मसला ये होता है कि जैसा हमने अभी बात करी ना कि पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर पाते लोग, क्योंकि लोग दूसरों के लिए काम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. डू यू थिंक कि पर्सनल ब्रांडिंग को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए रिगार्डिंग टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? बिकॉज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. इट्स हाउ यू शो योर वर्क जो कि आपने दूसरों के लिए करा. बट also to be honest, as a creative professional, what I do is I do passion project as well. कि यार मैं कुछ आइडिया जनरेट करता हूँ, कोई पोस्ट हो गई, कोई आर्ट वर्क हो गया, कोई इंफॉर्मेटिव चीज़ हो गई, कोई नया प्लगइन आया तो उसको रिसर्च कर लिया, उसके बारे में देखा. क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में ना ये रिवाज ना बहुत कम है. डिज़ाइनर्स मुझे ऐसा लगता है सुबह उठते हैं, डिज़ाइन करते हैं, शायद पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं और सो जाते हैं. बट देयर इज ऑल्सो अ लर्निंग कर्व इन द पर्सनल ब्रांडिंग थिंग. सो मेरा पहला सवाल तो नहीं, पहला डिस्कशन का टॉपिक ये होगा कि पर्सनल ब्रांडिंग को आप कैसे देखते हो. नंबर सेकंड, व्हाट्स योर लर्निंग क्राइटेरिया? कि डू यू फील कि लर्निंग इज समथिंग दैट यू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस? फिर उसमें पेड कोर्सेज होते हैं, फ्री कोर्सेज होते हैं, यू हैव लाइक यूट्यूब इज लाइक फुल ऑफ नॉलेजेबल थिंग्स. बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि लोग उस पर इतना इंटलेक्ट नहीं कर पाते. क्योंकि मैं ये भी देखता हूँ कि आई डोंट बिलीव दैट कि जूनियर सीनियर वाला कुछ भी नहीं होता. क्योंकि व्हेन यू आर वर्किंग इन अ क्रिएटिव फील्ड, तो उसमें हर बंदे की क्रिएटिव नॉलेज बहुत अलग है, उसकी क्रिएटिव अप्रोच बहुत अलग है. लेकिन होता ही है कि लोगों का ना रिसर्च इतना अच्छा नहीं होता, या शायद इसी वजह से लोग जो है रिसर्च पार्ट दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सो कॉल्ड इंस्पिरेशन कह लें या इस तरह की कोई चीज़ होती है. So what you think on personal branding? What do you think on learning? And what do you think about the research part? So personal branding मेरे लिए ना, I think it's कि पहले आप अपने आप को जाने, आप कौन है, आप how do you want the world to perceive you. Or especially in terms of designers now, I think your personal branding comes in how you want, or what kind of design style you want to be known for. Like the designers that are really, really well known in their careers, in their industries, are the ones जिनका design देख के ना पहचान सकते हैं ये इस बंदे का design है, you know. So I think for me, personal branding is who are you and how do you want the world to perceive you. So that is for me. And for me, like मेरा personal brand, मुझे जो like ideal personal brand मेरा ये है कि I should be known for telling stories.
whether it's through design or whether it's through content. You know, I want to be known for telling stories. Um, so you know, that's ये मैंने आज नहीं बोल दिया कि you know मैं stories सुनाना चाहती हूँ. I've done a lot of inward research कि you know मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है करना, मुझे like how do I want to be seen, what do I want to be known for. And it has been a long journey of trying to get to know myself, which I think हमें कोई नहीं सिखाता है अपने आप को जानना, you know. And a lot of people go throughout their lives without knowing themselves. So personal brand बनाने से पहले you have to start getting to know yourself. And उसके लिए obviously there are a lot of ways to get to know yourself. But the step one is actually beginning to get to know and deciding that I want to get to know myself. जब आप अपने आप को जानेंगे तभी आप दूसरों को you know अपनी पहचान बना सकते हैं दूसरों के सामने. एंड पर्सनल ब्रांड तो यही है ना, अपनी पहचान बनाना. और पहचान जो है वो you know you have to start working on it. ऐसे तो नहीं बन सकता, you know. And I don't believe कि कोई भी you know when you just start posting और आपका पर्सनल ब्रांड बन जाएगा, ऐसे नहीं होता है. क्योंकि a lot of people I've seen who have a lot of followers on LinkedIn, but that's a lot of AI generated or very template generated content. You know, it's very generic. अगर आप उनका content पढ़ेंगे तो you can't really tell कि अच्छा ये कौन ये इंसान है. But people who actually really have a personal brand, have a way of telling their stories, have a way of showing their work, तो उनके साथ उनको आपको याद रहते हैं नाम से कि अच्छा ये बंदा LinkedIn पे मैंने इसका पोस्ट पढ़ा हुआ है, इस बारे में था वो पोस्ट. अगर कोई जेनेरिक पोस्ट होगा वो आपको नहीं याद रहेगा, बिकॉज यू नो यू वर जस्ट स्क्रॉलिंग, अच्छा भाई इसके इतने फॉलोअर्स हैं, इट्स अ फेमस पर्सन ऑन देयर, बट उसकी कोई पहचान नहीं है, पर्सनल ब्रांड नहीं है. सो पर्सनल ब्रांड रियली इज नोइंग योरसेल्फ एंड शोकेसिंग योर वर्क थ्रू दैट ब्रांड. जैसे आप कोई विजुअल ब्रांड किसी को बनाते हैं, इमर सिंह आप कुछ कह रहे थे? You stuck for a while, but that doesn't. मुझे अब मैंने वो एक चीज़ देखी, मुझे आपके कॉल से पहले ना वो एक को लगाना पड़ेगा डिस्क्लेमर. वजारत सेहत की तरफ से इंटरनेट के मसले की वजह से आप नॉलेज हासिल करने से बट दैट्स मैं एक सोच मैं नहीं सो बहुत जैसे ही हो रहा था ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी यार कि मैं इसका होगा स्टेप क्या बनाऊंगा. मैं आपकी वीडियो से पहले ना वो लगाऊंगा कि वजारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेट की वजह से आप नॉलेज से महरूम रहे. प्लीज थोड़ा सा बेयर करें. मैं ऑनेस्टली घर के कोने में बैठी हूँ जहाँ पे सबसे ज्यादा सिग्नल्स आते हैं. नहीं ना, लेकिन वो कराची का मसला है. बट यार जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक थी. इट्स नाउ इट्स कम टू द पॉइंट जहाँ पर्सनल ब्रांडिंग के आपने बारे में बताया, इट्स गुड इनफ. व्हाट डू यू थिंक के बिकॉज यू आर डूइंग डिजाइन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्टेड, ठीक है. अगर मैं इसको थोड़ा सा आसान करूँ, आर यू अ मेसी और आर यू अ रोनाल्डो? सो मेसी इज लाइक बचपन से पैदा हुआ और मैंने डिज़ाइन ही करना था. रोनाल्डो इज लाइक कि मैंने अपने फेज में थोड़ा टाइम बाद जाके पता करा कि ठीक है दिस इज समथिंग दैट, क्योंकि हो ये रहा है कि मैं बहुत सारे डिज़ाइनर से मिलता हूँ, वो उन्होंने बैचलर किसी में करा होता है, देन दे डूइंग डिज़ाइन, उसमें वो बहुत अच्छे हो जाते हैं. कुछ लोग होते हैं कि जो भी बनाते हैं वो बहुत अच्छा लगने लग जाता है, बट इट्स लाइक अ प्रोसेस. सो are you a Messi or are you a Ronaldo? I would say I'm a Ronaldo because मेरा background design का नहीं है, but I have बचपन से I've been into a lot of I would say art stuff. So I have dabbled with painting, I've dabbled with sketching, drawing, you know, all sorts of like physical art. Design को मैंने बहुत बाद में discover किया था. I started as like I was a really big fan of stationery. तो मुझे बहुत जोर से शौक चढ़ा कि मुझे अपनी स्टेशनरी बनानी है. I want to start my own business. I want to start a stationery line. तो मैंने जो है वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे you know डिजाइन करना स्टार्ट किया. It was you know YouTube से सीख के you know एक्सपेरिमेंट किया ये वो. And then COVID hit. COVID में
there were some colleges, schools, universities, they were offering online courses जो कि usually उनके on campus होते हैं, but वो कोविड की वजह से online हो रहे थे. I was like, अच्छा मैं ले लेती हूँ. And it was a basic training sort of a course for graphic design. तो मैंने वो ले लिया. That taught me the basics. Now I had learned the basics. Then obviously YouTube is your main university for design, I think. So I would like go on, learn literally anything I could find, experiment. And I did launch my stationery business. So obviously उसमें experiment करके different kind of designs produce करना and all. That's how I got started. So and उसके बाद I was just it was just a passion जो मेरे career के साथ साथ चल ही रहा था. And last year I've always sort of had this itch to build something of my own, start something of my own. So last year जब मुझे अपनी जॉब में ऐसा फील हुआ कि अच्छा वो सीलिंग आ गई, अब इससे ज्यादा ग्रोथ नजर नहीं आ रही, and I just like really wanted to start something. So I was like, why not do it now? अभी नहीं करूंगी तो कब करूँ, और अपने आप पे एक दफा चांस लेके देख लेती हूँ. I was like, okay, let's do this, and that's how TPT came into being. Perfect. That's come to the point कि अगर हम ये बात करते हैं कि हमने ये चीज़ देखी कि Sumal was not a Messi. He started from somewhere else and then goes toward that thing. इसमें एक बड़ी वो चीज़ होगी कि I won't be naming it, but there are a lot of institute who are offering courses for graphic designing. 3 महीने में सीख लो, 6 महीने में सीख लो, साल में सीख लो. Do you think design is something that can be taught in like a 3-month period, or design is something that क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि you might start learn the tool, but tool is not the part of design. Tool maybe help you to make something in a speed. Like अगर आप 1 घंटे में बनाते तो कोई टूल शायद आपको आसानी लागू कर देगा. It's all about your imagination. What do you think कि our universities or those institute are teaching something right as far as design part? क्योंकि I'm in always find for different industry professional जो कि creative से related होते हैं, जो कि अलग-अलग यूनिवर्सिटीज से होते हैं, बट उनका पोर्टफोलियो देखने के बाद ये पता चलता है कि जो काम उन्होंने यूनिवर्सिटी में करा होता है या तो बहुत ही बेसिक लेवल पर होता है, जो कि आपको किसी जॉब पोस्ट पे लैंड होने में मदद नहीं कर पाता. क्या आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी सही कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो आपको उसमें क्या करें? जैसे यूट्यूब इज अ वेरी बिग थिंग, बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है यूट्यूब लर्निंग इज ऑल्सो अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि उसमें आपको अपनी तरफ से सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है. यू नीड टू मेक योर ओन टाइम लाइन कि ठीक है यार, मुझे ट्यूटोरियल देखना है तो देखना है, मुझे उसको कॉपी नहीं करना, मुझे उसको सीखना है. बिकॉज कोई कैरिकुलम नहीं होता ना यूट्यूब पे देखने का, जल्द करा तो देख लिया. आई यूजुअली डू दैट. तो व्हाट डू यू थिंक, इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज, are they producing the right graphic designers or motion designers, or students are there for their own? I think डिजाइन एक ऐसी फील्ड है ना जिसमें आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, आप किसी को क्रिएटिव थिंकिंग नहीं सिखा सकते. That's something that every single person has to develop on their own. एंड डिजाइन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है अच्छा टेस्ट इन डिजाइन. आप डिजाइन तो आप किसी लोकल शॉप के लोगों को भी आप डिजाइन कह सकते हैं, बट इज इट अ गुड डिजाइन और इज इट अ बैड डिजाइन? So that's something really important. That's something that कोई और आपको नहीं सिखा सकता, वो आपको खुद सीखना होगा while looking at better work from other people around the globe, not just Pakistan, not just in your own region, from around the globe. क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपोजर आपका डिफरेंट काइंड ऑफ बैकग्राउंड से होगा, उतना ज़्यादा आपको आपका दिमाग उस तरह से खुलेगा, उस तरह से चलेगा कि अच्छा एक लेटर है उसको बनाने के 10,000 तरीके हो सकते हैं. So I think the institutes they are teaching the tools. I wouldn't say they're teaching design. They're teaching the tools. It's up to you how you use them.
It's up to you how you incorporate that into your design. It's up to you कि आप उस टूल को सीख के अपने आप को कितना ग्रो कर सकते हैं. So it's Fair enough. like, for example, if it's any other field, if it's finance, तो आपको पढ़ के तो आप वो सीख लेंगे कि क्या करना है, and then but it's up to you कि आप अपना डिजाइन, अपना करियर किस फील्ड, किस डायरेक्शन में लेके जाए. You could go into data, you could go into accounts, you could go to risk. तो Fair enough. Fair enough. सिखाने वाला तो अपनी तरफ से अपना काम पूरा कर ले, बस ऑन यू. परफेक्ट परफेक्ट. अच्छा, यहाँ ही से एक चीज़ ड्राइव करते हैं. सवाल है मेरे पास बड़ा, जो मैंने बड़ा कॉमनली सुना है या मैं देखता हूँ. व्हाट डू यू थिंक आर द कॉमन मिस्टेक्स यू सी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बंदा डॉक्टर बनता है 5 साल में तो उसको ज़्यादा इज्जत दी जाती है, और जो 4 साल में डिज़ाइनर बनता है वो सिर्फ डिज़ाइनर होता है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि हमें पता नहीं क्यों मुझे पाकिस्तान में लगता है कि डिज़ाइनर्स को डिज़ाइनर बोलने में भी ना शर्म आती है. तो हम डेजिग्नेशन देख रहे होते हैं लोगों की, विजुअलाइजर और आर्ट डायरेक्टर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. I'm not pointing out कि designations नहीं होती, designations are also important, but हर designation का एक अलग अलग एक वर्क फोर्स होता है या उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है. What do you think, what are the key mistakes that you have seen जो कि लोग करते हैं इनिशियल लेवल पे? मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जो कि अभी चाहते हैं कि हम डिज़ाइन करें. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझसे भी कोई बच्चे मिल रहे होते हैं या कोई मेरे रिश्तेदार या कोई जानने वाले मिलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम जो अभी कर रहे हैं ना बस वो हम एकदम से आ गए. क्योंकि इट्स अ ऑन गोइंग थिंग ना. वी स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर. अगर मैं आज अपना सबसे पहला डिज़ाइन निकाल के देखूँ तो शायद वो सबसे अजीब सा होता है. Then after working for several years in pipeline, now we come to the point कि जहाँ पे हम चीज़ों को बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं और हम चीज़ों को समझ रहे होते हैं, और हम जो भी चीज़ बना रहे होते हैं उसके पीछे एक मेथड होता है, उसके पीछे साइंस होती है, उसके पीछे कलर थ्योरी होती है, उसके पीछे पूरी की पूरी एक स्टोरी होती है. So what do you think, what are the common mistake that you are seeing अभी इंडस्ट्री में जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनको क्या क्या मिस्टेक्स और उनको कैसे सही कर सकते हैं? आई थिंक कि सबसे पहले जो चीज तो यही है कि a lot of people just think of themselves as designers because they know how to use the tools, and not, that's one thing, and then not experimenting enough. Also diving into freelancing way too soon before you actually, have developed those creative skills. By creative, I mean you can actually have a method, have a thought process, have a storytelling to your design. I think, and also, I think ये तो खैर चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, but I think you should start building your presence on social media, whether it's Instagram, whether it's LinkedIn, whether it's any other place, as early as possible. You should show your passion projects, and also people don't focus a lot on passion projects. People don't have passion projects. People usually So I think बहुत important होता है. people usually don't have an idea what is passion projects. So basically, I have in a one-on-one session with a student, and the main problem he was saying कि सर हम जो काम कर रहे हैं ना वो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि NDA साइन हुआ हुआ है और हम उस कंपनी में ये नहीं कहा हुआ. तो द फर्स्ट थिंग दैट आई सेड दैट व्हाई आर यू गाइस नॉट डूइंग पैशन प्रोजेक्ट्स? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लोगों को पता ही नहीं कि पैशन प्रोजेक्ट्स होते क्या है. अपेरेंटली डिजाइनर को तो एक ब्रीफ मिलती है, तो वो ब्रीफ आप खुद भी अपने आप को दे सकते हैं. यू कैन इंस्पायर फ्रॉम एनी अदर वर्क, यू कैन डू एनीथिंग. अपने आप को एक ब्रीफ दें और उस पर अपना एक डिज़ाइन थ्योरी और अपना एक डिज़ाइन बना सकते हैं. तो पैशन प्रोजेक्ट्स तो है एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हम देख रहे होते हैं लोगों का वो काम जो लोग दूसरों के लिए कर रहे होते हैं, बट यूजली उनका अपने लिए क्या करते हो. वो जो सवाल होता है ना कि आप अपने लिए क्या करते हो, मैं डिज़ाइन तो करता हूँ बट मैं अपने लिए क्या करता हूँ, तो वो तो बहुत बड़ा एक मसला है. तो ये तो मिस्टेक है. आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट जो आपने कहे कि लोग बहुत जल्दी जो है फ्रीलांस या अपवर्क, फाइवर इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं,
बट अपेरेंटली अगर आपके पास उस सेट ऑफ नॉलेज नहीं होती तो आप शायद अपवर्क, फाइवर या किसी प्लेटफॉर्म पर उस हिसाब से स्केल अप नहीं कर पाते। जो लोग कर रहे हैं दे आर डूइंग वेरी गुड, क्योंकि वो बहुत टाइम से वो चीज़ कर रहे हैं, दे आर लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। नाउ कम टू द पॉइंट कि अब मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ वेरी फ्री कैन लाइक कहीं से भी नॉलेज मिल रही है तो वो ले लो राइट नाउ। जैसे मैं आपसे, मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, क्योंकि आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिव्स यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवन एनीवेयर। अब होता क्या, मैं यही चीज़ बहुत देख रहा हूँ, अब आप ये मेंशन करेंगी, आई एम नॉट श्योर पाकिस्तान में कितना है, बट people are not into the learning sector of getting certification from different things like जैसे बहुत सारी सर्टिफिकेशन है, प्रोडक्ट स्कूल के सर्टिफिकेशन है, गूगल की सर्टिफिकेशन है, UI UX की सर्टिफिकेशन है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू थिंक कि सर्टिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है? मुझे तो लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई हैव डन माय कोर्स फ्रॉम स्कूल ऑफ मोशन, that's for my career path, it's a motion design course। बट यूजली लोगों को ना बहुत सारी चीज़ें ना छोटी छोटी भी कर सकते हैं, लिंक्डइन के कोर्सेज होते हैं, यू कैन वाउच आउट टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म टू, जहाँ पे आपको फिग्मा के कोर्सेज मिल जाते हैं। वो पाकिस्तान में यूजली लोग वो नहीं करते। डू यू थिंक दिस इज समथिंग दैट कैन हेल्प इन द करियर पाथवे? एब्सोल्युटली, आई थिंक लर्निंग तो रुकनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। चाहे आप वो यूट्यूब से करें, चाहे आप वो किसी कॉलेज से करें, चाहे आप वो कोर्सेज के थ्रू करें, लर्निंग कभी भी नहीं रुकनी चाहिए। मैं भी कॉन्स्टेंटली जो है वो कुछ ना कुछ सीख रही होती हूँ, और मेरा इसी वजह से आई थिंक वो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि मैं जो है वो कोई भी चीज नया वर्ड सुनती हूँ ना, तो आई जस्ट गूगल इट एंड आई जस्ट गो डीप इनटू इट। तो मैं जो है वो अपनी मेरे इसी वजह से मेरे स्किल सेट बहुत ज्यादा जनरल किस्म का है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट एरिया से है, क्योंकि मैं वो अपनी क्यूरियोसिटी को वो फ्यूल कर रही होती हूँ कुछ ना कुछ सीख के ना। तो आई थिंक बिल्कुल भी लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए, एंड यू शुड कॉन्स्टेंटली बी इन द स्टेट ऑफ इम्प्रूविंग योरसेल्फ। कॉन्स्टेंटली लोगों का काम देख के मुझे तो लाइक, मैं आई थिंक दिस ईयर और मे बी फ्यू इयर्स अगो मैंने अपना वो अरेबिक जो है वो डिजाइन देखा, एंड आई वाज रियली इंस्पायर्ड हाउ पीपल have sort of developed a very modern design visuals to Arabic design, I would say. Yeah, the GCC region design wise, जो GCC के अंदर, Correct. it's a very, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने एक बहुत ही अलग नीश मार्केट बना लिया। आप अगर उनके डिजाइन को देखते हैं, बहुत ही डिफरेंटली उन्होंने अपने फॉन्ट सिलेक्शंस को या अपनी थीम को नए डिजाइन के अंदर इतना प्यार से डाला हुआ होता है कि आपको बहुत अच्छी लगती है। दिस इज ऑल्सो अनदर नीश। बहुत सारे लोग हैं जिस पे काम कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं GCC रीजन पे काम करते हैं, क्योंकि द क्वालिटी, द डिटेलिंग दैट दे आर डूइंग, इट्स वेरी डिफरेंट। ऑल्सो मैं ये भी देख रहा होता हूँ कि द डिज़ाइन दैट वी यूजली सी एज अ रेफरेंस हैज़ अ लॉट गो थ्रू इन इट। क्योंकि अगर कोई मैं फूड की पोस्ट देख रहा हूँ या सोशल मीडिया डिज़ाइन देख रहा हूँ, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट यार सेलिंग द स्टफ, आपने पिक्चर रखी उसके ऊपर प्राइसिंग लिख दी, दिस इज नॉट हाउ यू सेल द स्टफ। आई थिंक द आइडिया इज कि प्रैक्टिस तो बिल्कुल है, क्योंकि लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि मसला ये होता है कि लोग कहते हैं यार हम उस तरह आपकी डिटेल नहीं कर पाते, या उस हिसाब का ना कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते। बट वही बात है ना कि सेल्फ लर्निंग आप करते हैं, एट सर्टेन पॉइंट योर एवरी स्ट्रोक्स मैटर। आप जो भी स्ट्रोक लगाते हैं लोगों को लगता है क्रिएटिव है, a lot of things। So is there any exercise that you do, like जैसे फॉर एग्जाम्पल एज अ डिज़ाइनर, या बहुत टाइम से मैं एक एक्सरसाइज करता हूँ कि आई डू लाइट पेंटिंग ऑन अ बॉल, कि यार अगर लाइट यहाँ से आएगी, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इफ़ यू नो द लाइटिंग वेरी वेल यू कैन प्रोड्यूस अ वेरी गुड कॉन्टेंट। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन द फील्ड ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, यू आर प्रोड्यूसिंग कॉन्टेंट फॉर इन 2D 3D CGI, we have to model things, we have to render out things, उसमें फिर लाइटिंग है, मटेरियल्स हैं, टेक्सचरिंग है, एवरीथिंग। सो मुझे लगता है मेरी प्रैक्टिस ये होती है कि मैं क्या करता हूँ, मैं रोज एक सर्कल लेता हूँ और आई पेंट इट विद द ब्रश इनटू अ स्फीयर फ्रॉम अ डिफरेंट लाइट सोर्स। और हर बंदे की अलग होती है। कुछ लोग जो हैं वो बाउंसिंग बॉल पे कोई चीज़ कर रहे होते हैं, तो देयर इज देयर एनीथिंग, सुमुल, जो आप कहते हो कि यार मैं ये
ट्राई करती हूँ, या ये एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को ट्राई करना चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो जो मेरी एक्सरसाइज है, मैं तो हर किसी को बोलता हूँ कि यार, इफ़ यू कैन टर्न अ सर्कल इनटू अ स्फेयर, from imagination, from just a brush stroke without using any gradients, from just a brush stroke, आपको पता हो कि लाइट अगर यहाँ से आ रही है, रिफ्लेक्शन कहाँ पड़ रहा है, शेडो कहाँ पड़ रहा है, बिकॉज दिस इज द बेसिक्स। क्योंकि आप इसी को फिर अप्लाई कर दे तो हर चीज़ पे, तो आपकी हर चीज़ बहुत अच्छी लगने लग जाती है। So is there anything that you do, or any course that you want to mention कि यार ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक लेवल पे, या ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अपकमिंग आर्टिस्ट को करनी चाहिए? I don't really have an exercise as such, but मैं personally बहुत सारी ऐसी चीजें करती हूँ, I think वो somehow do translate into my work। जैसे मैं journaling करती हूँ, I sometimes, पहले मैं sketching बहुत करती थी, अब नहीं करती। I wish अभी भी करती होती, अब नहीं करती इतनी। But I sometimes illustrate, or I scroll on Pinterest a lot. Like, it's legit Pinterest पे as compared to Instagram, TikTok, ज़्यादा time spend करना अच्छा लगता है, which I think helps me develop a visual taste. हाँ, तो I think these are the things that I do. Or I watch a lot of YouTube content जो in very, very different aspects. A lot on content creation, content marketing, and design combined. So I think वो सब चीजें फिर somehow do translate into my work. But कोई as such regular exercise नहीं करती मैं. Perfect. Thank you so much, Sumal. It's a very lovely session, and I'm pretty much sure अगर ये पाकिस्तान का इंटरनेट सही चल रहा होता तो लोगों को वो नहीं होता। I need to give that disclaimer देना पड़ेगा। But nevertheless, there's a lot of insights जो कि मुझे आपसे पता चली। I'm pretty much sure कि जो लोग ये देख रहे हैं उनको भी इन चीज़ों पे help out मिलेगा काफ़ी, and we can help to the upcoming artists and upcoming designers or motion designers. So thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on. Thank you so much.